Hello dear students, welcome in a lecture of electrochemistry. In a previous two lecture, इसके पहले हमने दो lecture लिए. We have completed what is meant by oxidation, reduction, redox, anode, cathode. Means all basic term we have completed. Then in a second lecture also, we have completed what is different type of cell. We have studied electrolytic cell, electrochemical cell, and their half cell, cell presentation, etc. etc. Now in today's video lecture, we will study about these things. Now the topic of this module, first what is mean by cell potential, how we can measure it. The next thing we will study is oxidation potential और उसके बाद पढ़ेंगे reduction potentials. So पूरा वीडियो देखिए, अच्छी तरह से प्रयत्न कीजिए, समझ में सभी आ जाएगा. So let's start with Gangani sir, cell potential, oxidation potential and reduction potential. Okay, now what is mean by these things? Suppose now first what is इलेक्ट्रोकेमिकल क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसको आपको पूछा जाता है व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. फिर आपको एक मार्क में पूछा जा सकता है व्हाट इज सेल पोटेंशियल. देन हाउ वी कैन कंपेयर टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट or atom ion or molecule to lost electron by study of electrochemical cell. So this thing we have to study in this part. So what is electrochemical cell? In a previous lecture we have already studied electrochemical cell means the cell which convert chemical energy, this chemical energy into electrical energy में जो convert करता है उसको हम बोलते हैं cell. Now second thing, what is mean by cell potential? So now very simple thing, we have two electrodes. Now this two electrode when we combine, we have constructed two half cell. Now this half cell we have electrodes. Now these two electrode we will combine. One electrode will act as anode, second electrode will act as a cathode. So now electron will start to flow from anode to cathode due to electric pressure. This electric pressure is produced by a chemical reactions. So now whatever electric pressure is produced, this is known as a cell potential and we are giving by E cell. Or it is a difference in a tendency of an electrode to release electron. So it is also given by a delta E. तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया व्हाट इज मीन बाय सेल पोटेंशियल. तो हमने दो इलेक्ट्रोड लिए, उसको कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड. So due to this, one type of electric pressure will produce and such a pressure is known as a cell potential. उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? Then very simple symbol E cell. By using E cell we can represent it. Now suppose हमारा सेल है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पर वर्क कर रहा है. अब आपको पता है स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm या 1 bar, and next thing concentration. If concentration of solution is 1 molar and if any gas is associated with it, then its pressure will be 1 atm. This condition is known as a standard condition, and if cell is working in a standard condition, then whatever potential obtained, it is known as a standard cell potential given by symbol E0 cell. तो आपको पता हो गया कि चलो E0 सेल क्या है. तो ये E0 सेल है वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है. अच्छा, उसको किस तरह से मेजर कर सकते हैं? तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के मेजर करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस है उसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर. यदि आपने फिजिक्स के प्रैक्टिकल किए हैं तो आपको पता होगा कि बाय यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर वी हैव टू मेजर व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ द सेल. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं. नाउ cell potential. So what is cell potential? Actually the cell potential we can say it is nothing but, cell potential is nothing but it is a difference between a two electrode or a tendency of two electrode to release electron. अब जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की will act as a anode, will act as a anode. जो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके सामने,
it will act as an anode, and the electrode whose tendency to release electron is less is act as a cathode. So what is cell potential actually? Cell potential is nothing but difference between a two electrode to release electron. So now it will be asked in this way. Explain tendency of electrode to release electron. अब देखते हैं, ये सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है गैल्वेनिक सेल का। आपको पता है कि जिंक इलेक्ट्रोड लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, इट विल एक्ट एज एनोड। कॉपर इलेक्ट्रोड राइट हैंड साइड लिखा है, इट विल एक्ट एज ए कैथोड। एनोड पर चार्ज होगा, कौन सा होगा? माइनस। अच्छा, कैथोड पे कौन सा चार्ज होगा? यानी प्लस। एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? तो एनोड है तो ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड है तो रिडक्शन होगा। सो इसका मीनिंग क्या हुआ? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिंक के साथ जब हम कॉपर को अटैच करते हैं तो टेंडेंसी ऑफ कॉपर टू लूज इलेक्ट्रॉन इज लेस एज कंपेयर टू जिंक। यानी जिंक की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, तो इसीलिए जब भी हम इस दोनों सेल को कनेक्ट करते हैं जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे देखिए जिंक इज लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन एंड अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। whatever electron lost by zinc it will be gained by a copper, और यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉपर मेटल में। तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिंक इज वर्किंग एज ए एनोड, कॉपर इज वर्किंग एज ए कैथोड। अब ऐसा क्यों हुआ? तो हमने पढ़ ही लिया ऑलरेडी। क्या पढ़ा हमने? कि टेंडेंसी ऑफ जिंक to release electron is greater as compared to copper. जिंक की इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा है कॉपर से, इसलिए जिंक विल रिलीज इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर जिंक इज वर्किंग एज ए एनोड एंड कॉपर इज वर्किंग एज ए कैथोड। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट करते हैं। नाउ आई एम joining copper with a silver electrode. Now the tendency of copper to release electron is more as compared to silver. तो अब कॉपर क्या करेगा? कॉपर विल एक्ट एज ए एनोड एंड सिल्वर विल एक्ट एज ए कैथोड। तो अब भी हम जो दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं उनमें जिसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज्यादा है विल एक्ट एज ए एनोड। The second electrode whose electron releasing tendency is less will act as a cathode. Now here copper is working as an anode and silver is working as a cathode. Now we have these reactions. आप देखते हो कि यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टिंग इन कॉपर प्लस 2 आयन। अब जो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट की है विल गेन बाय 2 सिल्वर एंड इट इज कन्वर्टिंग इन ए सिल्वर मेटल। सो कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। सिल्वर का रिडक्शन हुआ, उसको कैथोड बन गया। सो इन दिस वे वी कैन से दैट द इलेक्ट्रोड whose tendency to release electron is more will act as anode. The electrode whose tendency to release electron less will act as a cathode. तो देख सकते हो आप किसके साथ जुड़े हो। यदि कॉपर जिंक के साथ जुड़ा है देन कॉपर विल एक्ट एज ए कैथोड। यदि कॉपर सिल्वर के साथ जुड़ा है देन कॉपर विल एक्ट एज ए एनोड। तो दो इलेक्ट्रोड में से जिसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज्यादा will act as a anode and second will act as a cathode. So it is a very simple thing I will try to explain you now. अब ऑलरेडी हमने पढ़ा कि कॉपर की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी क्या है, तो सिल्वर से ज्यादा है, देन कॉपर विल रिलीज इलेक्ट्रॉन। Now in about example it is indicate to us that zinc and copper when attached then tendency of zinc electrode to release electron is high, therefore it is anode and second is a cathode. अब what is cell potential? तो cell potential को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। The cell potential is nothing but a, हमने आगे देखा, difference between a two electrode to release electron.
यानी एनोड और कैथोड की इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी है, उसका डिफरेंस है, उसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल। हमने दो इलेक्ट्रॉन लिए, उसको कनेक्ट किया, दोनों की इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी है, उसका डिफरेंस है, उसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल। सिंबल E0 सेल। यदि स्टैंडर्ड स्टेट है देन E0 सेल, स्टैंडर्ड नहीं है देन E सेल। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब यह कंफर्म है कि वी कैन नॉट मेजर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इलेक्ट्रोड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, बिकॉज अकेला इलेक्ट्रोड कभी पोटेंशियल क्रिएट कर ही नहीं सकता, प्रेशर क्रिएट कर ही नहीं सकता। सो वी कैन नॉट मेजर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वी कैन नॉट मेजर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इलेक्ट्रोड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। यदि हमें मेजर करना है तो उसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ। जब हम दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे तभी उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी मेजर कर सकते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आगे कि व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिंबल क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का? E0 OX। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है सिंबल रिडक्शन पोटेंशियल का? E0 ReD। और ये सेल पोटेंशियल। और इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हाफ सेल पोटेंशियल। अब हाफ सेल का पोटेंशियल किस तरह से डिटरमाइन करेंगे? सो इसको सिंपली इस तरह से डिफाइन करते हैं, रिलेटिव इंटेंसिटी और a tendency of electrode to release electron। अब दो इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड गिवन बाय सिंबल E0X if it is in a standard state। So what is oxidation potential? Oxidation potential is nothing but relative intensity of tendency of an electrode, the relative intensity of tendency of an electrode to release electron is known as a oxidation potential, and if it is in standard state then it is a E0X। अब reduction potential क्या है? Now यदि हमें किसी सेल का रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करना तो आगे हम पढ़ेंगे कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी का डिफरेंस है, उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। नाउ यदि हमें किसी हाफ सेल का सेल पोटेंशियल डिटरमाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा? नाउ द स्टैंडर्ड हाफ सेल इज कंबाइंड विथ ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल। किसी भी सेल का पोटेंशियल मेजर करना है then we have to combine this electrode with a standard hydrogen electrode, or we can say standard hydrogen half cell। When we combine we have to use a salt bridge, then we have to complete this both construction of cell। एक एनोड होगा दूसरा कैथोड होगा। यदि इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है then it will act as anode and hydrogen will act as a cathode। यदि कम है then hydrogen will act as anode and second will act as a cathode। अब हमने क्या मेजर किया? तो हमने मेजर किया डिफरेंस बिटवीन ए टू इलेक्ट्रोड to release electron, then we have get a potential of this cell and it is known as a cell potential and measured by device using a potentiometer। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यू में पूछा जाता है कि भाई सेल पोटेंशियल किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर करेंगे? देन सेल पोटेंशियल कैन बी मेजर्ड विथ हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप मेजर कर सकते हो। अब हमने सेल पोटेंशियल मेजर कर लिया दो इलेक्ट्रोड का, एक ट्रेज है, वन इज एनोड, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर किया, दूसरा कैथोड, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर किया। अब दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं, then whatever we obtain delta E means difference between cell potential is known as a E0 cell potential। अब यदि हमने रिडक्शन पोटेंशियल मेजर किया है तो इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट होगा। क्या है रिडक्शन पोटेंशियल का इक्वेशंस? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इक्वेशंस होगा तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। यदि हमने रिडक्शन पोटेंशियल मेजर किया है तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड में से रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड मेजर करेंगे।
तो हम इस तरह से किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में कि टू हाफ सेल हमने कनेक्ट कर दिए, तो जब भी हम हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन के पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0। अब measured cell potential is also cell potential of half cell when we are combining with a hydrogen electrode। यानी किसी भी इलेक्ट्रोड को जब भी हम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो हाइड्रोजन का तो सेल पोटेंशियल 0 है, तो जो पोटेंशियल हमें मिलेगा वो उस हाफ सेल का सेल पोटेंशियल होगा। इट इज वेरी क्लियर थिंग। नाउ आगे बढ़ते हैं। इफ हाफ सेल अंडर स्टडी एक्ट एज एन anode, then measure potential whatever we have obtained is a standard oxidation potential and having a positive sign। आपको पता आ गया कि हम किसी भी हाफ सेल को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं। अब दूसरा जो इलेक्ट्रोड हमने हाइड्रोजन के साथ किया कनेक्ट, वो एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, तो जो भी पोटेंशियल हमें मिलेगा वो होगा उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल when we combine any half cell to hydrogen half cell, we have constructed a cell. If another electrode is working as an anode, then whatever potential measured, its value will be always positive, and this is nothing but standard oxidation potential of that electrode। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज ऑपोजिट ऑफ दिस, ऑपोजिट क्या है? सपोज हाफ सेल अंडर स्टडी, यानी हमने जो दूसरा इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट किया, इट इज वर्किंग एज ए कैथोड, इट इज वर्किंग एज ए कैथोड, then whatever value of potential we are getting, it will be a negative, and therefore it is nothing but a standard reduction potential of that half cell। it is standard reduction potential of that half cell कि उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी कम है। So now in this way one can define, one can measure what is cell potential। So simple thing, or we can conclude that oxidation potential and reduction potential both having a same value। किसी भी इलेक्ट्रोड का oxidation potential and reduction potential will be same, only their magnitude यानी sign will be different। So यदि आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर करते हैं, if only sign is changed by you, then it will be a reduction potential of another electrode। now हमें देखना है कि रिलेशन बिटवीन ए सेल पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। now whatever we have connected these two half cell to construct a standard cell, now if the electrode of higher cell having a higher oxidation potential, हमें किसी भी सेल का पोटेंशियल मेजर करना है, तो हमने टू हाई डिफरेंट इलेक्ट्रोड लिए, टू डिफरेंट हाफ सेल कनेक्ट किए, उनमें से जिसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है विल एक्ट एज ए एनोड। नाउ सेकंड थिंग, दूसरा इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल कम है, देन इट विल एक्ट एज ए कैथोड। सपोज यहाँ पर मैंने गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल लिया है। इन गैल्वेनिक सेल दिस जिंक इज वर्किंग एज ए एनोड and copper is working as a cathode when we combine and construct this half cell। क्यों ऐसा हुआ? then जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आपको पता है 0.76 वोल्ट है। अब कॉपर इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हुई -0.34 वोल्ट। अब इस दोनों इलेक्ट्रोड को हम कंबाइन करते हैं, तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कनेक्ट किया हमने 0.76 माइनस माइनस 0.34 वोल्ट। अब उसका सेल पोटेंशियल इस इक्वेशन में वैल्यू रख के कैलकुलेट कीजिए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक 0.76 माइनस की साइन एज इट इज, then oxidation potential of copper minus 0.34,
तो हमें जो पोटेंशियल मिलेगा उसकी वैल्यू है 1.1 वोल्ट। तो इस तरह से हम किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए वेरी सिंपल एंड फर्स्ट बेसिक इक्वेशंस कि आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड सब्सट्रैक्ट करोगे, देन यू विल गेट ए वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल। यानी गैल्वेनिक सेल की सेल पोटेंशियल की वैल्यू हमें मिलती है, इस इलेक्ट्रोड की सेल पोटेंशियल की वैल्यू हमें मिलती है 1.1 वोल्ट। दिस मच पोटेंशियल वी कैन ऑब्टेन। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ electrode having a higher potential value will having a tendency to release electron will be more as compared to hydrogen electrode। मैंने आपको कितनी ही बार ये बताया। The next thing, when such electrode combined to hydrogen half cell, it is working as an anode। opposite of this, if potential electrode release करने की tendency less है, then it will act as a cathode when it is combined with a hydrogen electrode। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब नया क्वेश्चन हमारे लिए, व्हाट इज मीन बाय ईएमएफ सीरीज एंड व्हाट इज मीन बाय ईएमएफ। तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ। अब क्या है डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ? नाउ पोटेंशियल ऑफ सेल हमने मेजर कर लिया इस तरह से, देन with respect to hydrogen electrode whatever potential of electrode is measured it is known as a EMF। अब EMF का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। रिपीट करता हूं, EMF का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। So what is EMF? When potential of any electrode is measured with respect to hydrogen electrode then it is known as a EMF। किसी भी इलेक्ट्रोड को हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं, उसका सेल पोटेंशियल मेजर करते हैं, तो जो भी पोटेंशियल मिलेगा उसको हम बोलेंगे ईएमएफ। अब उस तरह से हमने सभी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर कर लिया। सपोज हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर किया सभी इलेक्ट्रोड का और उसको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, देन व्हाटएवर सीरीज ऑब्टेन इट इज नोन एज ईएमएफ सीरीज and shortly we are writing EMS। So what is EMF series or EMS series? When oxidation potential of different electrode is measured with respect to hydrogen electrode। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में हमने दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर किया। अब मेजर करने के बाद मैं उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं एंड आई एम गेटिंग ए वन सीरीज एंड दिस सीरीज इज नोन एज ए EMF सीरीज। अच्छा, ये EMF सीरीज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लेकर बनाई गई है, देन इट इज नोन एज EMF सीरीज रेफरेंस टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और वी कैन से EMF सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब EMF सीरीज के एडवांटेज क्या है, उसमें हमने से कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं? तो जब भी EMF सीरीज में हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऊपर से नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होगा, हमने पर तो यानी उसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन विल गोइंग टू डिक्रीज। अब जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होता है, हमने पढ़ा है कि रिड्यूसिंग एजेंट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो रहा है यानी रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो इस सीरीज में हम जब ऊपर से नीचे जाएंगे, व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वी कैन से oxidation potential will decrease, tendency to work as a reducing agent will decrease। बहुत ही ट्रिकी और इजी थिंग है, आपको पता आ गई कि हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रेफरेंस में एक सीरीज कंस्ट्रक्ट की। अब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगा। अब कोई भी सब्सटेंस, हमने पढ़ा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास है, तो रिड्यूसिंग एजेंट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो रिडक्शन रिएक्शन फिल करता है। तो अब रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन फिल करता है, यानी हम सीरीज में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि टेंडेंसी टू एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, tendency to act as a reducing agent will also decrease।
So with help of EMF series, this thing we can get idea. Now next point, second point, टेंडेंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रोड टू अंडरगो रिडक्शन. अब रिडक्शन की टेंडेंसी हम टॉप टू बॉटम में इंक्रीज हो रही है. अब एक डिक्रीज होगा तो अल्टीमेटली सेकंड विल इंक्रीज. तो हम कह सकते हैं कि हम टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन विल increase, means strength to act as oxidizing agent will also increase when we go top to bottom. तो सिंपल थिंग एक आपको समझ में आ गई कि भाई ऊपर से नीचे जा रहा है तो टेंडेंसी और स्ट्रेंथ टू एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस डिक्रीज हो रही है. तो रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही है. अब सेकंड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, when we combine two standard half cell of EMF series, then what will be the value of potential? What will be the value of cell potential by connecting any two half cell? This thing we can calculate. दो हाफ सेल को कनेक्ट करते हैं तो कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है वो प्रिडिक्ट हो जाएगा. जब हाफ सेल को कनेक्ट करते हैं तो उसके सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी वो हमें पता चल जाएगी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कनेक्ट करने से पहले भी हमें पता होगा कि which electrode will act as anode, which electrode will act as a cathode. So EMF series के last two advantage, one can calculate what is the value of cell potential. इलेक्ट्रोड सेल को कंस्ट्रक्ट करने से हमें कितना पोटेंशियल मिलेगा, this thing we can calculate before connecting this cell. Second thing, when we are connecting two half cell, then which will act as an anode, which will act as a cathode, this can be predicted. हम पहले से ही बता सकते हैं which will act as a, this thing we can predict. So now here we have a completed what is meant by EMF and EMF series. So dear students, ये लेक्चर आपको BSc केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं. उसके लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर भावेश गंगाणी. फायदा ये होगा कि मेरे अपलोड किए हुए हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी. सेकंड थिंग, इफ यू वांट टू क्लियर योर केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट, आपको बेसिक केमिस्ट्री पढ़ना है और इंग्लिश में पढ़ना है, देन जॉइन मी विद दिस चैनल शिवम एजुकेशन फॉर केमिस्ट्री. ये हुआ बेसिक केमिस्ट्री के लिए और ये आपके BSc केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के लिए. विथ माय नेम यू कैन ज्वाइन. हेलो, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा और अच्छी तरह से पढ़ते रहे. चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. सी यू इन ए नेक्स्ट लेक्चर. यदि अच्छा लगा ही होगा ना, समझ में आ गया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी इन्फॉर्म करते रहिएगा.